In 2004, we did a conference, Eastern Zonal Conference and State Conference. After that, whole Disha Eye Hospital team came and we started small incision stitchless cataract surgery with grand success. 2007, we got accreditation for National Board for DNB in ophthalmology for 2 seats. 2008, phaco emulsification was started at Bokaro in a record time within a week from initiation of project to implementation. Then we went into opening up eye bank and corneal transplantation center in 2013. In between, we have procured gradually every year some new equipments, namely fundus camera, fluorescent angiography system with fluorescent angiography system, and latest is OCT machine. So to summarize, eye department of Bokaro General Hospital is equipped with all infrastructure of a multi-speciality eye center for excellence. This is the brief description of my activity and BGH, Bokaro General Hospital. In my personal capacity with my team, I had made more than 200 presentations nationally and internationally. I have more than 80 publications till date in national and international peer-reviewed journals. Wrote a chapter on a book of ocular trauma. And I have got fellowships and prizes from All India Ophthalmological Society, more than 20 prizes, including many international awards. These things were my personal achievement through the collaborative departmental activity of BGH. So with this brief introduction, as I have mentioned earlier, that ophthalmology, though my profession, it is more like my passion. Why I consider myself as Bokaro Wale? Because I spent around 25 years working from specialist ophthalmologist to director medical services. My children studied at DPS, and you will be glad to know my son is also doing MS in ophthalmology at Calcutta National Medical College. My daughter is in final year MBBS. As I have mentioned, I always consider a physician, doctor as a noble profession, and I strive for that. With this brief introduction of myself, I'll go into today's discussion. If you want to ask question in between, you can post it in this, and I will try to satisfy your question. This year, 2020, is maybe it will be a turning point of civilization. Within 100 years, people have not experienced such a pandemic world over. Spanish flu was in 1920, now this is COVID-19. It's a very tough situation, but we should be tougher to sail through this pandemic. I am concerned, now I would like to speak on how to sail through this pandemic. You all know, you are all going through, I'll say, infodemics on COVID-19, social distancing, masks, and other things. I only insist, use mask, wash hands, and try to make social distancing. This will help us to contain this disease. It will definitely pass out, but we don't know how much toll we have to pay during this period. So I request you all to listen to me carefully.
After finishing my academics, I came and joined to Bokaro. I'll go straight to eye care. There are pre-existing diseases which affects younger age group and aged people. In between, less number of people are affected with pre-existing disorders. They cannot travel to the hospital, make consultation. We are living in a virtual world with a real perception, real-time perception. This is the problem of this pandemic. Now I come to the children's eye. 7% of the population is having lazy eye. That means one eye is weaker, for which they need treatment in the form of occlusion and some exercises for which they have to come to the hospital. We have developed in Bokaro. In Bokaro, there is a very efficient orthoptician in BGH, Mr. Katiyar, who can guide you to how to tide over this. For this, I'll say, don't miss your occlusion therapy. You keep on doing this and send the report of your vision. You can test it. You can test it at your home. आप आपका घर में ही ये देख सकते हैं. अपना एक आँख जो अच्छा आँख है उसको ढक के रखे, बिकॉज वंस एक बार वो विजन चला जाता है क्रिटिकल एज में, तो वापस आना लगभग नामुमकिन है. दूसरा जो कॉमन प्रॉब्लम, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू पैंडेमिक और COVID-19 डायरेक्टली, बट इट हैज़ pushed us in a virtual world where हम लोग ऑनलाइन में व्यस्त रहते, भी ये क्लास हो और एनी एक्टिविटीज़, चाहे खाने का ऑर्डर देना हो. सो एवरेज स्क्रीन टाइम यूज बाय जो इस्तेमाल करते हैं वो करीब 300% टू सम केसेस 500% इंक्रीज हो गया. इससे आई स्ट्रेन, ड्राइंग प्रॉब्लम, दीज आर ऑलवेज हैपनिंग. सो आई विल रिक्वेस्ट यू, यू कैनॉट रेस्ट्रिक्ट योर स्क्रीन टाइम, आप कम नहीं कर सकते, बट यू हैव टू टेक रेस्ट. यू फॉलो, आप 20-20-20 का रूल फॉलो करिए. 20 मिनट अगर आप स्क्रीन टाइम रखते हैं तो 20 सेकंड ब्रेक लीजिए. 20 मीटर दूर, मतलब डिस्टेंस में कहीं देखिए. इससे आपका काफ़ी हद तक प्रॉब्लम दूर हो जाएगा. ये हो गया बच्चा लोगों का आँख के बारे में. नाउ कमिंग टू द एजेड पीपल, more than 60 years, senior residents, they cannot sacrifice their vision because of fear of the pandemic. So हम लोग डॉक्टर के नाते, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के नाते एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि दे शुड नॉट मिस देयर ट्रीटमेंट फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिजॉर्डर्स. आप लोग सब जानते हैं काला मोतियाबिंद, ग्लोकोमा, एवरी डे करीब 1% न्यू केसेस डिटेक्ट होता है. इस बीमारी में जो विजन चला जाता है, रोशनी चला जाता है, वो कभी वापस नहीं आता है. तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? उसके लिए मॉनिटर करना है, डोज स्किप नहीं करना है. जो प्री एग्जिस्टिंग ऑलरेडी डायग्नोस्ड है, दे कैन चेक देयर विजन. एक आंख बंद करके दूसरे आंख से देखना है, रीडिंग डिस्टेंस में देखना है. इससे एक स्क्वायर टाइप का ग्राफ पेपर ले लीजिए, हम लोग जिसको एम्स्टलर ग्रिड बोलते हैं, उसको इस्तेमाल करिए. एक नॉर्मल ग्राफ पेपर 1 मिलीमीटर विड्थ में करीब आपको 10 सेंटीमीटर का ले लीजिए, स्क्वायर ग्राफ. लुक एट द सेंटर, उसका बीच में देखिए, एक आंख बंद करके. कोई काला धब्बा तो नज़र नहीं आता है, या लाइन कुछ डिस्टॉर्टेड तो नहीं आता है. देन यू हैव टू फोन योर डॉक्टर, टेक एडवाइस.
एज ए डॉक्टर हम लोग ऑल प्रिकॉशन मेंटेन करके ही आपको देखेंगे। ओनली थिंग वी विल रिक्वेस्ट, अननेसेसरी विजिट मत करिए। इफ़ एवरीथिंग इज ऑल राइट, गेट योर मेडिसिन्स। जैसे कि एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, अनदर थिंग डायबिटिक रेटिनोपैथी, उसमें अब रेटिनल वास्कुलर ऑक्लूशन, ये सब में इफ़ वी स्किप जो इंजेक्शन दिया जाता है आँख में, तो परमानेंट ब्लाइंडनेस आ सकता है। इन बिटवीन मेरा क्वेश्चन कुछ क्वेरीज आ रहा है फ्रॉम डिफरेंट फील्ड। आई विल टेक अप दोज वंस आई फिनिश दिस। सो माय रिक्वेस्ट, ग्लोकोमा ऑलरेडी डायग्नोस्ड should not skip their medicine, they should put medicine, monitor on Amsler grid। वन आई, एक आँख बंद करके। और जिसको आँख में हेवीनेस होता है, न्यूली डायग्नोसिस कैसे करेंगे? ग्रॉसली आप अगर हेवीनेस आता है, अगर पेन हो रहा है, देन फ़ोन करिए, फ़ोटो खींचिए, भेजिए अपना ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को, आई सर्जन, आई स्पेशलिस्ट को। दे कैन प्रोबेबली अरेंज फॉर एन अपॉइंटमेंट विथ ऑल सेफ्टी प्रिकॉशंस। सो माई रिक्वेस्ट इज, डोंट पैनिक, बी calm, take care of your eyes. Now I will go into another thing, treatment part of pandemic COVID-19। इससे भी आँख का बड़ा रिश्ता है। We were all fascinated by hydroxychloroquine. I am not a medical specialist to give opinion, but as per the notification goes, March 20 US approved, June 15th this 2020 they revoked their decision that benefits outweigh the risk। आँख कैसे इन्वॉल्व है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेने से रेटिना का प्रॉब्लम होता है, बट नॉर्मल हेल्दी पीपल को नहीं होता है, तो डरने का कोई बात नहीं है। अगर ज़रूरत पड़े, आपका मेडिकल स्पेशलिस्ट एडवाइस करे, ले सकते हैं। जो डोज देते हैं, जिस ड्यूरेशन के लिए देते हैं, उससे रेटिना का प्रॉब्लम नहीं होता है। हार्ट का वो सब कार्डियोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, यू हैव गॉट लॉट ऑफ स्पेशलिस्ट नियर बाई, इवन इन बोकारो, और BGH is very much well equipped to take care। So hydroxychloroquine I have stated। Another thing, prone position treatment to increase the oxygen availability। ऑक्सीजन शरीर में बढ़ाने के लिए जो प्रोन ट्रीटमेंट किया जाता है, ये देखा गया कोविड में इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं आया है ट्रीटमेंट में, लेकिन न्यूरो सर्जरी, स्पाइनल सर्जरी में रीढ़ का ऑपरेशन जब करता है, मरीज को उलट पेट की बल लेटा के किया जाते हैं। अगर उसमें देखा गया 1000 में 2 आदमी का परमानेंट विजन लॉस हो जाता है। सो इन कोविड केसेस, माय रिक्वेस्ट टू द CCO स्पेशलिस्ट हु आर यूजिंग दिस मेथड, द हेड, मरीज का माथा थोड़ा सा हार्ट लेवल की बराबर या उससे ऊपर रहेगा, ताकि आँख में प्रेशर ना बढ़े, ऑक्सीजन सप्लाई आँख में कम ना हो जाए, प्रेशर बढ़ के आई का स्ट्रोक हो सकता है, विच कैन लीड टू ब्लाइंडनेस। दिस इज अनदर पॉइंट आई विल टेक, कंजंक्टिवाइटिस, जो आँख पिंक आई, लाल आँख हो गया। इसमें यूजुअली 3 कैटेगरी का होता है। इस सीजन में एलर्जिक होता है, एक आपका जो वायरल कंजंक्टिवाइटिस या बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस जो एडिनोवायरस से होता है, मोस्टली वही होता है। किसी ने क्वेश्चन पूछा, कैन कोरोना इफेक्ट इन द आईज? यस, जितना भी जो मेन स्टडी जितना आया है, सब जगह से 1 to 5% में इफेक्ट मिला है इन द फॉर्म ऑफ vascular occlusion, conjunctivitis, but it is not yet no study has come whether आँख का अंदर का जो फ्लूइड है उसमें वायरस आता है कि नहीं।
बाहर से जो आंसू होता है उसमें बहुत सीवियर केसेस में 1 in 1000 केसेस में वायरस RT-PCR से आइसोलेट किया गया है। ट्रीटमेंट साइड इफेक्ट हो सकता है पेंडेमिक, एज आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड, सो नथिंग टू वरी, टेक प्रिकॉशन। मेन प्रिकॉशन यू हैव टू टेक, जब आँख को रब नहीं करिए, you put your, see, blinking, our tears can eliminate some form of airborne, जो आजकल बताया जा रहा है, today only report has come that now virus is airborne, can stay 8 hours, before it was only aerosol. So if it is in air, we are exposed, we cannot wash our eye with soap or sanitization. So frequent blinking and your tears, which has got protective enzymes, they may eliminate. This is how corona affects eyes. Now how to differentiate? आपका लाल आँख हो गया, तो आप कैसे डायग्नोसिस करेंगे? 3 तरह का लाल आँख होता है ग्रॉसली जो हो रहा है। एक एलर्जिक, उसमें खाली ईचिंग होगा, पानी आएगा, डिस्चार्ज नहीं रहेगा। इसके साथ फीवर, ब्रेथलेसनेस, पेन, जो कोरोना का, कोविड का फीचर्स है, वो नहीं रहेगा। सो आप रेस्ट एश्योर्ड, इट इज़ एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस। कोई दवा का ज़रूरत नहीं, कोल्ड कंप्रेस करिए, फ्रिज का पानी में कपड़ा भिगो के आँख सेकिए। दूसरा है नॉर्मल वायरल एडिनोवायरल कंजंक्टिवाइटिस, जितना ऐसे जय बांग्ला जिसको बोलते हैं हम लोग, वो भी होता है, लेकिन इस सीज़न में थोड़ा सा कम रहता है। तो उसमें भी आँख लाल होता है, डिस्चार्ज होता है, लेकिन फीवर आमतौर पे नहीं होता है या कोविड का फीचर नहीं रहता है। बाकी सब अगर लाल आँख जिसमें आपको डिस्टॉर्टेड विजन में दिक्कत हो रहा है, देखने में दिक्कत हो रहा है, टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, पेन हो रहा है, तब आपको ज़रूर कंसल्टेशन लेना है बाय टेलीफोन। इट हैज़ बीन अप्रूव्ड, यू कैन कंसल्ट। नाउ आई विल टेक अप सम few questions. Somebody has asked, 8 hours of computer work can affect eyes. I have already stated, yes. कंप्यूटर वर्क कैसे आँख को इफेक्ट करती है? इट इज़ नॉट द रेडिएशन, बिकॉज ऑल आर नाउ लो रेडिएशन स्क्रीन। तो कैसे इफेक्ट करता है? व्हेन वी लुक एट द स्क्रीन, वी डोंट ब्लिंक, वी स्टेयर। नॉर्मली वी हैव टू ब्लिंक, नॉर्मली वी ब्लिंक 16 times a minute. फॉर प्रोलॉन्ग्ड यूज स्क्रीन टाइम, दिस ब्लिंक रेट, जो पलक गिरने का रेट होता है, वो गिर जाता है। अगर वो 10 के अंदर आ जाता है, 10 के नीचे आ जाता है, तब आपको फैटिगनेस, ड्राइनेस, पानी आना, बहुत कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है। ब्लिंक, एज आई हैव मेंशन, 20-20-20, 20-20 का रूल, वो फॉलो करिए। और आपका आँख का पलक में कुछ ग्लैंड्स होता है, मेबोमियन ग्लैंड्स, जो ऑयल सिक्रेट करता है। ब्लिंक कम होने से वो ग्लैंड ब्लॉक हो जाता है, तो आप उसको साफ रखिए। एकदम साधारण तरीका है। दवा तो अभी जाके खरीदना मुश्किल है। अब घर में जो खाने वाला सोडा मिलता है, बेकिंग सोडा, आधा कप गुनगुना पानी में 1 छोटा चम्मच सोडा ले लीजिए। रुई या रुमाल, साफ रुमाल से पलक का मार्जिन को ऐसे ऐसे साफ करिए। एंड ऑफ कोर्स व्हेन एवर यू गेट टाइम, जब भी कंप्यूटर में काम करते वक्त, तो कोल्ड कॉम्प्रेस कवर अप रखिए। दैट विल बी टेस्ट फॉर 20 सेकेंड रखिए, फिर दूर में देखिए। ड्रॉप्स आई डोंट यूजुअली एडवाइज इन दिस। इफ़ यू कीप क्लीन व्हेन यू आर गोइंग टू बेड, इफ़ यू कीप योर आईलिड्स ग्लैंड क्लीन, साफ रखेंगे खाने वाला सोडा से, ऑयली सिक्रीशन वो ग्लैंड से निकालता है, वो आपको टीयर का जो इवापोरेशन होता है उसको कम कर देता है। तो उससे आपका कॉर्निया, आँख का पुतली प्रोटेक्ट रहता है। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, पता नहीं कुछ हमारा
बायोडाटा देख के शायद बताए हैं, किसी पूछे हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर ऑप्थेल रेसिडेंसी। इट्स ए लॉन्ग सब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा 3 लाइन बताएंगे इसमें। यू लव योर ऑप्थेल्मोलॉजी प्रोफेशन, टेक इट एज ए पैशन, गो थ्रू बुक्स, टेक नोट ऑफ ईच एंड एवरी केस। आजकल सबके पास स्मार्टफोन है, छोटा से लेके आईफोन तक। टेक फोटोग्राफ, कंसल्ट विथ योर learned teachers, then read it. First you know the case, clinical experience, read. Next is surgery. Yes, in this period it is really difficult for the surgeons, especially those in the surgical branches, main surgery or any specialized surgery like ophthal, dental, ENT, neurosurgery. They have to go for virtual training, and whenever there is a scope, keep one case. आज ही हम पढ़ रहे थे गाइडलाइंस ऑफ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सर्जन्स। दे हैव सेड आइदर यू टेस्ट और you do pre-operative quarantine for 14 days. If no symptom, you go for surgery. खैर ये सब तो नया नया डेवलप करेगा। एंड अदर थिंग इज डोंट पैनिक, डोंट कंपेयर विद आवर रेसिडेंसी पीरियड। हम लोग जो रेसिडेंसी करते थे सर्जरी बहुत सीखे हैं, हम स्टार्ट ही किए थे केराटोप्लास्टी से। एनीवे दिस इज ए पर्सनल थिंग, सो आई विल request you, be digital. I can assure you after next session will be mostly digital. So you start early, you gain early, and it will be persisting. तो ये तो गया आपका कोरोना के बारे में। एक अच्छा बात बताते हैं, वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन। Everybody is delighted over vaccine. एज एन आई स्पेशलिस्ट पहले हम एक दुख का बता देते हैं। फास्ट कोरोना जो डिटेक्ट किया था वो एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट था, युहान का, 32 या 35 years old. He ultimately expired. So his soul rest in peace. Now coming to the good news, we have got आई में एक मेडिसिन जो हेरिटेबल रेटिनल डिजॉर्डर, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा 65, उसके लिए निकाला है, विच हैज़ गॉट FDA अप्रूव्ड, लक्सटूर्ना नाम पे। ये एक जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं थ्रू एडेनो एसोसिएटेड वायरस। द वैक्सीन हैज़ बीन कोडनेम अब कोविड। सो वी आर डिलाइटेड दैट इट इज़ prior it got approval for treatment of eye, now it is doing for corona. It's simply that spike protein on the coronavirus that has been transferred through the that harmless viral carrier to the human body to boost up the immunity. And if it mutates, this can be switched off also. Preliminary reports are exciting. So that is all from my side. I can answer some more question. If you really want to know, you can directly post it. And those who are saying me hello, I am also reciprocating this. Good evening. All मैं एक क्वेश्चन पूछा, वाटरिंग फ्रॉम आईज while watching TV. अब that depends of which age group. Age wise I will advise. अगर बच्चा है तो उसका स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना है, दूर से देखना है। वाटरिंग अगर
ब्लरिंग के साथ समझ लीजिए टीवी का जो लिखा आता है नीचे स्टैंडर्ड स्क्रीन में, वो दैट इज इफ़ यू कैन वो आपको क्लियरली दिखता है फ्रॉम योर सोफ़ा से 2 मीटर्स दूर से 2 मीटर दूरी से आपको दिखाई देता है। दैट मीन्स इट इज़ ड्यू टू सम आई स्ट्रेन। दिखाई नहीं देता है, इसका मतलब आप आगे जा रहा है तो आपको आँख में रिफ्रैक्टिव एरर मतलब चश्मा का ज़रूरत पड़ सकता है। और सेम थिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि वह जब कोई चीज़ स्क्रीन में हम लोग वीडियो टर्म में VDT जो बोलते थे पहले, जो स्क्रीन को देखते हैं वो कंप्यूटर LED स्क्रीन हो या LED TV, LCD TV, whatever it is, then our blink rate goes down. You blink in between. If these things also doesn't improve, then you do cold compress, and whenever time is suitable, conducible, visit your ophthalmologist for refractive checkup. Maybe by this time the pandemic is over or in creating problems, people will come up with softwares on your mobile that will detect your refractive error also, आँख का पावर। अगर बड़े लोगों का हो रहा है, थायराइड का बीमारी है कि नहीं देखना है, पलक साफ रहता है कि नहीं देखना है। जैसे आँख का पलक का इन्फ्लेमेशन हो जाने से भी ऐसा होता है। पलक साफ रखना है, ब्लिंक करना है, कोल्ड कंप्रेस करना है, यही चीज़ फॉलो करें, सेफ डिस्टेंस मेंटेन करिए, वाटरिंग विल बी रिड्यूस्ड। और कोई क्वेश्चन? If any more question is there, देख चीज नहीं है। So I think I have covered all the things in a brief way. Now I will conclude my session, but all the responses will be replied, if not live, within few hours. One more question is there, टेरिजियम, आँख में झिल्ली आ जाता है। जो झिल्ली आ जाता है, टेरिजियम मतलब एक विंग्ड स्ट्रक्चर, धीरे धीरे आँख का सफ़ेद हिस्सा से आपका पलक जो ट्रांसपेरेंट स्वच्छ रहता है उसके ऊपर आ जाता है। ये डिस्टॉर्टेड विजन देता है, वाटरिंग करता है, रेडनेस करता है। तो इसके लिए स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है भाई। आपको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से थोड़ा बचना है, स्ट्रॉन्ग सनलाइट से बचना है, डस्ट से बचना है। आप चश्मा लगा सकते हैं, सनग्लास लगाइए, हैट लगाइए, आँख साफ रखिए। डॉक्टर से तो आपको कंसल्ट करना है। लुब्रिकेटिंग ड्रॉप यूज़ करिए, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल टीयर बोलते हैं, वो फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करें। बिकॉज हम लोग ऑपरेशन करके तो निकाल सकते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट ए पीरियड ऑफ सर्जरी, बिकॉज टेरिजियम में आपको थर्मो जो खून का नाली रहता है, प्रोबेबली दिस हैज़ बीन आस्क्ड बाय सम मेडिकल पर्सनल, सो हम थोड़ा मेडिकल टर्म्स भी बताते हैं। जो ब्लड वेसल्स रहता है उसको हम लोग कॉटराइज करते हैं, एंड दैट जनरेट्स लॉट ऑफ एरोसॉल, एंड इफ the patient is good, you should not allow any aerosol forming procedure, as simple as that. Right now if the pterygium is progressive, doctor can say that लाल बार बार होगा। if it is regressive, कुछ नहीं करना है, time will come, we'll tide over sail through this pandemic, we'll take care of all these things, have faith, put on mask, universal, probably we have to embark upon universal masking, simple surgical 3-layered mask. While you are talking, 3-layered mask सामने वाला भी पहने है, आपकी भी पहने, तो वायरस का बीच में आपको 6 लेयर रह गया। अब जितना भी ताकतवर हो उतना नहीं कर सकता है। One more question.
Not so now I should conclude. You can contact me on Facebook for any problems. I thank all the viewers, all and Bokaro Update particularly, who has remembered me when I was out of Bokaro. It was a wonderful interactive session. Take care, put on mask, keep safe distancing, don't travel outside unless it is necessary. Just think that virus is around. Virus is everywhere. Only thing you protect yourself by shielding yourself. Shielding means use mask, air curtain and social distancing, and please do avoid going out, because you may have your aged parents, you may have other comorbidities, you may have children, so you should not be a carrier of the virus to your home. Think everywhere there is virus. This is probably the only way हम लोग इसे लड़ सकते हैं. Again, I thank everybody for listening and interacting with me, particularly Bokaro Updates. Take care, stay safe, stay home. Good night.